Hello students, in the previous lecture we have talked about one of the components and that was productivity. Now next is decomposition, the second component. Okay, it is basically breakdown of organic matters to release the minerals which are present in it. It is an aerobic process. It means it requires oxygen. Now, what are the exact stages and how things convert from one form to the other, that we will see. So first, suppose if fresh leaves fall on the ground and undergo decomposition. Okay, now they undergo partial decomposition to form detritus, and this process is known as fragmentation. Breakdown of larger pieces of leaves into a partially broken down decomposed organic matter called detritus. Now, this detritus will be consumed by earthworm and convert into humus. So, this humus, the process of formation of humus from detritus is known as humification. Okay. Now, this humus further broken down to release minerals, and that process is known as mineralization. So here all the minerals are released into soil and water and the entire cycle gets completed. So this is the entire process of decomposition. Means what? Again we'll revise कि अगर फ्रेश पत्ते या ड्राई लीव्स जो होते हैं वो ज़मीन पे गिरते हैं एंड वहाँ पे वो क्या होते हैं, पार्शियली डिकम्पोज्ड होते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं लैंड में, सॉइल में, वो उन्हें पार्शियली डिकम्पोज्ड करते हैं और उसको डेट्रिटस में कन्वर्ट करते हैं, और ये प्रोसेस जो है उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. फिर आगे फर्दर प्रोसेस में जो डेट्रिटस है वो अर्थवर्म कंज्यूम करते हैं और उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, और ये प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं. एंड फर्दर ये जो ह्यूमस है वो उसका ब्रेक डाउन होके मिनरल्स रिलीज होता है. सो उस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं. और लास्ट में क्या होता है कि जो मिनरल्स जो रिलीज हुए हैं वो सॉइल या तो फिर वाटर में चले जाते हैं, और ये पूरे जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है, और ये प्रोसेस जो है पूरी उससे क्या कहते हैं, decomposition. Now here you have to keep two terms in your mind. First is catabolism. Catabolism means all the breakdown reactions, and second term is leaching, means percolation and precipitation of minerals. Now, when the minerals are formed during the process of decomposition and it rains, minerals percolate into the soil, and when they reach into little lower level they will precipitate it. Okay, so precipitation of minerals during percolation, and now they are in solid form, so unavailable for plants. So actually what is leaching? तो लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि जब मिनरल रिलीज होके सॉइल में चले जाते हैं एंड जब बारिश होती है तब वो जो मिनरल्स है वो सॉइल के अंदर थोड़े लोअर लेवल में नीचे चले जाते हैं, और वहाँ जाके वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेटेड या फिर सॉलिडिफाई हो जाते हैं. ठीक है, और सॉलिडिफाई एक बार हो गए फिर वो प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल हो जाएंगे. मीन्स प्लांट्स जो है वो उसे एब्जॉर्ब, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. तो ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली हार्मफुल प्रोसेस है. ओके, सो दिस टू टर्म्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. Now we will see some factors which are actually affecting the process of decomposition.
So first factor is composition. If the thing or the substance which have to be decomposed is made up of lignin or cutin, the decomposition the decomposition process will be slower. But if it is made up of sugar or nitrogen, then the process will be faster. Okay, so here first जो है कुछ हम देखेंगे, कुछ ऐसी प्रोसेस और सॉरी कुछ ऐसे फैक्टर्स कि जो डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं, उसको फास्ट बनाते हैं या स्लो करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है कंपोजिशन। ओके, कंपोजिशन, अगर जो मटेरियल है, चाहे वो प्लांट्स हो या चाहे जो भी चीज़ हो जिसको डिकम्पोज होना है, अगर वो लिग्निन या क्यूटिन से बना हुआ होता है तो जो डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। क्यों? बिकॉज लिग्निन एंड क्यूटिन आर समवॉट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो उसको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है। बट अगर वो जो चीज़ें हैं वो शुगर या तो नाइट्रोजन की बनी हुई होती है तो वो कैसा है, वो थोड़े सिंपलर स्ट्रक्चर्स, सिंपलर फॉर्म्स है, तो उसका जो ब्रेक डाउन है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज डिकम्पोजिशन। The second is external conditions. External factors or external conditions like temperature, humidity, then availability of oxygen, these all things affect on the process of decomposition. If the temperature is high, or we can say optimum, the process will be faster, and if the temperature is low, then the process will be slower. Same, humidity is higher, then the process will be faster. But if the humidity is low, or if the environment or if the condition is dry, then the process will be slower down. Then availability of oxygen, that is called aerobic process. If the oxygen is available in proper amount, the rate is faster, and in absence of oxygen the rate is slower, means decomposition will be slower. So second factor is external condition. एक्सटर्नल कंडीशन में क्या क्या होगा? टेम्परेचर होगी, ह्यूमिडिटी होगी, देन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी। अगर टेम्परेचर जो है वो हाई होगा या तो ऑप्टिमम, मतलब जो रिक्वायर्ड है जो वो प्रोसेस होने के लिए उतना होगा, तो वो प्रोसेस जो है डिकम्पोजिशन की वो फास्ट हो जाएगी। बट अगर टेम्परेचर ठंडा होगा, लो होगा, तो वो जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगी। सेम वे में अगर ह्यूमिडिटी, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो प्रोसेस फास्ट होती है। अगर ह्यूमिडिटी कम है, मतलब अगर ड्राई है एनवायरनमेंट, तो स्लो डाउन हो जाती है एक्टिविटी। जैसे हम देखते हैं कि अगर समर का सीज़न है, गर्मी है, और अगर कोई कचरा या अगर कोई भी पत्ते कुछ भी ज़मीन पे गिरा हुआ है तो वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। लेकिन अगर मानसून की सीज़न है तो हमें जगह जगह पे सब चीज़ें जो है वो डिकम्पोज होती हुई दिखती है, जैसे पत्ते हैं, कचरा है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ओके, और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑब्वियसली कोई भी प्रोसेस है उसको होने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो अगर ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो जो डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन या प्रोसेस है वो फास्ट होगी, अदरवाइज तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ह्यूमस। We normally say that if the humus is present in the soil quality is good. But what actually the humus is? Okay, so the humus is dark colored and colloidal substance. It is resistant to microbial action. Means microbes can affect very slowly on the material.
Which material? The material which have to be decomposed. So the action of microorganisms will be slower down. Okay. By whom? By humus. So that means now we know that ki humus is further decomposed into minerals. Okay, and these minerals are beneficial for plants. But if a large amount of minerals formed, the possibility of leaching will be increased. So humus releases minerals very slowly. So what will happen? Those minerals are absorbed by plants slowly. So the plants will get more time to absorb the minerals. Otherwise, leaching process will occur, and what will happen? The minerals will be solidified, and the solid minerals are useless for the plants because plants cannot absorb it. So it is said that the soil quality is good if humus is present in it, because the humus is rich in minerals. Understand? Okay, again we will revise what is humus. तो बहुत बार हम सुनते हैं कि ह्यूमस जो है वो कुछ ऐसी चीज़ है कि जो सॉइल में होती है तो वो सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है. बट एक्चुअली ह्यूमस होता क्या है? तो ह्यूमस एक डार्क कलर का कॉलोइडल सब्सटेंस होता है, और ये जो ह्यूमस है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, रेजिस्ट करता है. किस चीज़ के लिए? तो कि खुद को मीन्स ह्यूमस को मिनरल्स में कन्वर्ट होने के लिए. ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप कर देता है एक्टिविटीज़, पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ वो स्लो डाउन करता है ताकि ह्यूमस में से मिनरल्स जो है वो धीरे रिलीज हो और प्लांट्स को इनफ टाइम मिल पाए वो सारे मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने के लिए. अदरवाइज क्या हो जाएगा कि अगर सारे ह्यूमस में से एक साथ सारे मिनरल्स अगर रिलीज हो गए तो सॉइल में मिनरल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर वाटर अवेलेबल हो गया तो अगेन वो मिनरल क्या हो जाएंगे? सॉइल के अंदर चले जाएंगे, पर्कोलेट होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे एंड सॉलिडिफाई हो जाएंगे. एंड वंस दे विल गेट सॉलिडिफाइड, मतलब वो अगर सॉलिडिफाई हो गए तो वो फिर प्लांट के लिए तो यूजलेस हो गए. सो इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमस जो सॉइल में है वो सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है, ठीक है. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, एंड दिस एंटायर प्रोसेस डिपेंड्स ऑन microorganisms or microbes, or we can say decomposers. So they are the main responsible organisms for the entire process. Now the third component is energy flow, which we will discuss in the next lecture.